Hello and welcome to Shivanomics. Today's video is one of the most important videos for anyone preparing for UPSC CSC Economics Optional. क्योंकि answer writing is where most students lose marks even after knowing the concepts. Because let's be honest, it is not just about how much you study. It is about how well you present what you know. You may know the theory, you may know every model, but if you can't write what UPSC wants, marks won't come. In this video, I'll show you exactly how to write high quality answers for both paper 1 and paper 2, what UPSC expects, and how you can transform your answers from average to high scoring. I assure you that by the end of this session, you will not only know what to write, you will know exactly how to craft answers that are polished, purposeful, and packed with conceptual clarity. Exactly the kind of answers that can easily boost your score by 20 to 40 marks. So, let's start the session. Before we begin, let me read out something directly from the official UPSC notification. It clearly says that the scope of the syllabus for optional subject papers for the examination is broadly the honors degree level, that is, a level higher than the bachelor's degree and lower than the master's degree. This is exactly what UPSC expects from you in economics optional. This one line tells you everything. UPSC doesn't want PhD level answers, and it definitely doesn't want you to answer like a layman. It wants clear, conceptually strong, honors level answers written in a structured, crisp, and confident manner. So now that you know clearly from the official UPSC notification itself that what it requires from you in the optional exam, let's start with the session. We'll start with the general answer writing tips which are applicable to both the papers, that is paper 1 as well as paper 2. First is read the question very carefully. तो आप जो भी मेंस का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो ये तो हर एक के लिए एप्लीकेबल है दैट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आता है so there is no harm in reading the question twice. You must be very sure that you understand the demand of the question very correctly. Next is plan before you start writing. आपको मेंटली अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना देना है कि आप कैसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन. ऐसा ना हो कि आपने क्वेश्चन रीड किया एंड यू स्टार्टेड राइटिंग इट देयर एंड देन और उसके बाद आपको बीच में याद आता है ओहो इंट्रोडक्शन में मुझे तो ये लिखना चाहिए था, ये बेटर होता है, या उसके बाद ये assumptions लिखनी थी वो रह गई. So it is better that you plan before you start writing, and you must make sure in your mind that you address each sub part of the question very carefully. ऐसा ना हो जो आपको आता है बस आपने उसको ही बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया आंसर में और प्रॉपरली हर एक सब पार्ट को एड्रेस नहीं किया. हर सब पार्ट के अपने अलग अलग स्पेसिफाइड मार्क्स होते हैं. यू मस्ट गिव प्रॉपर अटेंशन टू ईच सब पार्ट. नेक्स्ट इज यू मस्ट बी वेरी प्रिसाइज वाइल राइटिंग योर आंसर्स. आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो. प्रिसीजन से रिलेटेड हम दो स्टेप्स में बात करेंगे. फर्स्ट इज vocabulary, second is in context of graphs. You would agree that economics is quite technical a subject with its own vocabulary. Being an economist, you cannot afford to use the words loosely. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने devaluation की जगह depreciation यूज कर दिया. The answer that you write should reflect your absolute clarity over technical economic terms. Precision is equally important in case of graphs as well. One simply cannot afford to draw graphs that look rough in the exam. If you are drawing MC and AC curves graph, you must ensure that MC curve cuts AC from its minimum point, not before, not after. If the graphs are not precise, it leaves a very bad impression about your basic understanding. Next is try creating interlinkages between the papers. For example, आप पेपर 1 के concepts पेपर 2 में मेंशन कर सकते हो और पेपर 2 के एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज पेपर 1 में मेंशन कर सकते हो. This we'll discuss in detail in next slides. Next is graphs are of much higher significance than mathematics in UPSC economics optional exam.
While economics is a highly mathematical and quantitative subject, UPSC does not demand that much of mathematical rigor. Avoid the use of large or complicated mathematical equations unnecessarily. I understand very well that master's courses in many prestigious institutions are very mathematical, but UPSC syllabus is not. One needs to be very careful of that. The simple rule of thumb should be that if at any place there is a way to show something through a graph and the same thing through a mathematical proof, you must go with graph. Next is intro body conclusion style of attempting the answers. ये भी हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पेपर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे. आई होप इट इज़ क्लियर इन योर माइंड्स दैट इंट्रो बॉडी कंक्लूजन एक स्टाइल है. हम ऐसे नहीं करते एग्जाम में अटेम्प्ट करते टाइम कि हम हेडिंग लिखें कि ये हम इंट्रो लिख रहे हैं, ये हम बॉडी शुरू कर रहे हैं और ये हम कंक्लूजन लिख रहे हैं. दीज फ्रेमवर्क्स आर इन योर माइंड कि हम इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे. स्पेसिफिक हेडिंग्स नहीं डालनी होती इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन. So let's start with paper 1 specific answer writing tips for economics optional. ये हमें पता है कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हर आंसर में होती है. सो इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट इंट्रोडक्शन, it is very important to directly address the demand of the question in the introduction itself. Paper 1 is fairly technical and beating around the bush will definitely make a bad impression. Your first sentence of the answer should itself reflect that you have a command over the topic. So in introduction, you would usually define the key term asked in the question, or you would provide overview of the answer. Now coming to the body portion, mentioning a few important assumptions even if it isn't explicitly asked gives the idea that you are well versed with the model and the concept. Usually paper 1 के हर question में कोई ना कोई model लग ही रहा होता है. अगर आप कोई model explain कर रहे हैं तो उसकी important 3-4 assumptions crisply mention करना is a very good idea. Then it is very important to answer the question in line with the demand of the question. This part is likely to include graphs and their explanations too. Body में paper 1 की graphs बहुत important role play करते हैं. Almost all the answers in paper 1 can have a graph incorporated. Try not missing it out. It is not at all necessary that you are drawing it with pencil and scale. Using pen to draw the diagrams is very much acceptable. Many toppers who have scored 300 plus in economics optional did not use pencil and scale to draw the diagrams. Graphs के केस में कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं. Labeling should be clear and precise. Your diagram should be self-explanatory. It should be conceptually correct. MC should cut AC from below and from its lowest point. और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मोनोपोली के केस में MR must hit the x-axis exactly when elasticity becomes 1. So that point is not guesswork. So I hope it is clear कि graphs बहुत important हैं. When you look at a question in paper 1, the first question you should be asking yourself is कि what graph would best answer this question. जो भी ग्राफ फिट बैठता है इस क्वेश्चन में वो आपको पक्का ड्रॉ करना चाहिए. सो उसके बाद बॉडी में मेनली आप एक्सप्लेन करोगे जो भी पूछा है, और कुछ क्वेश्चंस में तो बेसिकली ग्राफ की एक्सप्लेनेशन ही मेजरली बॉडी होती है. यू मस्ट एक्सप्लेन वेरी प्रिसाइसली एंड करेक्टली. उसके बाद हमने इंटरलिंकेजेस की बात करी है. यू कैन यूज एग्जाम्पल्स फ्रॉम पेपर 2, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी टू सब्सटेंशिएट द थ्योरी और मॉडल. फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रेविटी मॉडल की बात हो रही है तो यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ इंडिया चाइना ट्रेड. अगर सप्लाई साइड इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो यू कैन मेंशन द ग्लोबल इन्फ्लेशन फॉलोइंग द ऑयल प्राइस हाइक ड्यू टू वॉर इन यूक्रेन. तो इसके साथ आपका पेपर 1 और पेपर 2 इंटरलिंक हो जाते हैं एंड इट शोज दैट यू हैव अ वेरी गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आप अपने कंसेप्ट्स को, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को अप्लाई भी करते हो. और एक बात आपको ध्यान रखनी है पेपर 1 में, यू कैन मेंशन द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट्स रेलिवेंट टू द क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल अगर कैपेबिलिटीज अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आया है सो यू मस्ट मेंशन नेम ऑफ अमर्त्य सेन. अगर इमेजराइजिंग ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन है you can mention that the concept was first proposed by Dr. Jagdish Bhagwati in 1958. Now coming to the conclusion part,
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड योर आंसर प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि आपने कंक्लूजन लिखा तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा पक्का। हो भी सकता है अगर आपने बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखा है। इट माइट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर और आप खुश हो के आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए उस क्वेश्चन में। बट अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, बिना कंक्लूजन के अपना क्वेश्चन छोड़ दिया तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, तो उससे आपके मार्क्स कम होने के चांस पक्का रहते हैं। इट शोज दैट आपने ऐसे ही अटेम्प्ट किया, कोई क्लोजर नहीं दिया और आगे निकल पड़े आप। सो दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो यू मस्ट कंक्लूड योर आंसर। आप थोड़ा सा समराइज कर सकते हो पेपर 1 के केस में जो भी पूछा उसे कि हेंस इट शोज दैट ऐसे ऐसे करके, या फिर आप जो हमने इंटरलिंकेज वाली बात करी है पेपर 1 और पेपर 2 की, आप वो इंटरलिंक करके किसी रियल लाइफ सिचुएशन से या रियल लाइफ एग्जाम्पल से, केस स्टडी से, करंट अफेयर से, वैसे कर सकते हो आप कंक्लूड। या फिर आप किसी रिकमेंडेशन से एंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर केनेडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात कर सकते हो कंक्लूजन में थोड़ी बहुत। तो वो कंक्लूजन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट इन 1 और 2 लाइन यू मस्ट गिव क्लोजर टू योर आंसर। सो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि हमें कैसे आंसर लिखने चाहिए अपने पेपर 1 में। नो कमिंग टू पेपर 2, इसमें भी हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के टाइप में बात करेंगे। इफ वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, it can be any important data, figure, or quote from an economist which directly meets the demand of the question. आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है that it should address the demand of the question. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो जो irrelevant है। It should be very precise and effective. उसके बाद हम अगर body की बात करें, body can include tables, charts wherever necessary. Also, it is very important to quote economists here as it reflects that your opinions have some sound basis. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपका ओपिनियन पूछा है किसी इकोनॉमिक इशू के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप जो आपके दिमाग में आई जा रहा है आप लिखी जा रहे हो। यू मस्ट बैक योर ओपिनियन विद द रेलिवेंट studies या quotes of economists. So you must understand that it is very important to quote economists in paper 2 as it reflects that your opinions have some sound basis. ऐसा भी नहीं है कि आप बस इकोनॉमिस्ट के नाम स्प्रिंकल किए जा रहे हो बिना मतलब कि एक क्वेश्चन में 8-10 इकोनॉमिस्ट लिख दिए। ओवरडू भी नहीं करना है, बट अगर आप कोई आइडिया लिख रहे हो एंड आप उसको बैक करते हो कि इन इकोनॉमिस्ट ने दिया या इस कमेटी ने रिकमेंड किया है, तो हर आंसर में अगर आप 2-3 इकोनॉमिस्ट और उनके व्यूज मेंशन कर देते हो, दैट इज वेरी गुड। यू कैन गिव रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट की हम बात कर ही चुके हैं। कमिटीज मेंशन कर सकते हो आप, करंट इवेंट्स मेंशन कर सकते हो, दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर। यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट रियल लाइफ इकोनॉमिक एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज। जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो पेपर 2 की, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट योर आंसर शुड गिव द फील ऑफ द स्टाइल ऑफ पैराग्राफ्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। एंड ये बात हम पहले कर ही चुके हैं दैट इफ एनी इकोनॉमिक थ्योरी फ्रॉम पेपर 1 कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, यू मस्ट डू इट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपके पेपर 2 में, तो आप कुज़नेट्स कर्व मेंशन कर सकते हो। अगर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है, आप टोडेरो मॉडल की बात कर सकते हो इफ इट इज रेलिवेंट इन दैट क्वेश्चन। आपको वो तो पता चल ही जाएगा, आप इतना तो पढ़ ही चुके हो कि कौन से क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। वाइल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आप लुइस मॉडल की बात कर सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आई एम श्योर आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको और एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, you should never take a radical stand on any issue unless you have strong data and facts behind you. ऐसा नहीं करना कि बस मुझे ऐसा लगता है इसलिए ये ठीक है। And you must use examples liberally. बहुत अच्छे से examples यूज करने हैं to support your arguments. अब अगर हम conclusion की बात करें, एक तो वही है कि जो हमने इंटरलिंकिंग वाली बात करी है, ये वाली चीज़ आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। और यू कैन एंड योर आंसर्स ऑन अ पॉजिटिव नोट। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन की बात है तो यू कैन गिव रिकमेंडेशंस
ऑन हाउ टू टैकल इन्फ्लेशन, प्रॉपर मतलब अपनी रिकमेंडेशन नहीं, किसी इंपॉर्टेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस लिख दी या किसी इकोनॉमिस्ट को कोट कर दिया, ऐसे एंड कर सकते हो। या फिर सपोज अगर किसी क्वेश्चन के काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में सब पार्ट्स थे तो आप थोड़ा सा समराइज करके कंक्लूड कर सकते हो, बट यू मस्ट कंक्लूड योर आंसर्स। इसके बाद मेरे को दोनों पेपर्स के रिगार्डिंग एक और बार डिस्कस करनी है आपसे। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो सपोज आपसे अगर 3 सब पार्ट्स पूछे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, तो यू मस्ट एड्रेस ईच ऑफ देम प्रॉपरली। आप जैसे जो फर्स्ट है वो उसकी हेडिंग बनाओगे, उसको एड्रेस किया आपने, देन सेकंड सब पार्ट की हेडिंग प्रॉपरली बनाओगे, उसको एड्रेस किया, देन थर्ड सब पार्ट की हेडिंग बनाओगे, उसको एड्रेस किया। ऊपर ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन होगी, बेसिक, कंक्लूजन होगा। मतलब प्रॉपरली दिखना चाहिए कि आपने हर सब पार्ट को प्रॉपरली एड्रेस किया है। वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट प्रैक्टिस इज द की। ये आंसर राइटिंग के केस में भी एप्लीकेबल है, एंड अगर हम ग्राफ्स की बात करें उसमें भी आंसर राइटिंग का मीन्स यहाँ पे है कि थ्योरेटिकली जो हम लिखते हैं, तो क्योंकि किसी कंसेप्ट या थ्योरी का आना अलग बात है, उसको क्लियरली कंसाइजली इन लिमिटेड सेट ऑफ वर्ड्स एंड स्पेस लिखना अलग बात है। सो दैट रिक्वायर्स a lot of practice. Same is true in case of graphs as well. While it is easy to appreciate and understand that M are falling twice as fast as AR, believe me, when you start drawing downward sloping demand, M are below it, MC curve cutting it at the right point, and the shaded deadweight loss, that's where one realizes that it isn't as easy as it seems. So the more you practice, the easier it will become for you. तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो आप उतनी प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉपरली आंसर लिखने की भी एंड ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स एज वेल। एक और बात में यूजुअली स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हम पॉइंट्स में लिखें आंसर या पैराग्राफ में। टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि हाँ पॉइंट्स ही बेटर है या पैराग्राफ ही बेटर है, बट इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिसी के मेरिट्स या उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए बोला है आपको, तो आप थोड़ा सा उस पॉलिसी के बारे में बताओगे पहले, उसके बाद उसके मेरिट्स लिखोगे, डीमेरिट्स लिखोगे, तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप उनको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखो, उससे आपकी क्लैरिटी रहेगी और अननेसेसरीली आप उसको खींचोगे नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपने कोई मतलब सपोज पेपर 1 में कोई डायग्राम ड्रॉ किया है, उसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है डायग्राम में कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो मे बी अगर एक छोटा से पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन हो रहा है डायग्राम, तो वो भी सही रहेगा। तो इट वेरीज फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। यूजुअली पेपर 2 में अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं तो आई थिंक दैट इज़ अ बेटर आइडिया। अगर पॉइंट्स में लिखा जाता है तो पढ़ने वाले के लिए थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्लो में आप एक ही पॉइंट को इतना खींच देते हो, अगर वो पॉइंट पैराग्राफ स्टाइल में आप लिखते हो तो वैरायटी नहीं आ पाती उसमें ज़्यादा। बाकी the final answer regarding points or paragraph depends on the question itself. Question में जैसे पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। Now that we have discussed everything about how to write good answers, the most important question is that which question should we practice? Which questions to practice? इसका एक ही क्लियर सा आंसर है, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के 2 फायदे हैं आपको। एक तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दूसरी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफन गेट रिपीटेड। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है और आपने वो पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, तो दैट वुड बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू। सो माय सजेशन वुड बी, बिफोर going for any test series, you must attempt the previous year questions. So that's it for the answer writing session for economics optional. Now it's your turn. Practice past year questions, refine your diagrams, and keep your arguments tight and analytical. You must always keep in mind that economics optional rewards
clarity, not volume. And if you consistently apply the framework that we have discussed, your answers will definitely reflect depth, balance, and maturity. So that's it for this session. Thank you for watching. If you have any thoughts, questions, or confusions, please drop them in comment section. I'll see you in the next video.